Okay, so hi everyone. So we were waiting for a few more people to join. So I gladly welcome all of you to this first event of GDAC Technomate Salt Lake. So as we all of us know, GDAC clubs are university-based community for the group of students uh, by the Google Developer Technologies all over the world. So Technomate Salt Lake is proud to have its first chapter of Google Development Student Club on its campus. And today is the first event. The event is called the Introduction to Android Compose Camp to create your first Android app. So why are you here? Why should you join? Why have you joined Compose Camp? If you talk about that, it is going to be a month-long event having 5 workshops for an extensive learning opportunity. जहां तुम लोगों को एकदम बेसिक से लेके फाइनली we will take you to a point where you are completely prepared with your own self-made app. The complete guidance will be provided by us. Your doubts will be solved by us, by your facilitator, where you will be taught to create apps in Kotlin using Jetpack Compose, as your facilitator said. Then you will learn and hear from the experts of the industry. Also, at the end of it, the top 3 apps will be promoted through GDC EMSL social media pages. And also, there is something which is awaiting for you is that great digital rewards at the end of this Compose camp. Also, needless to say that why is Android so important? Because everything around us nowadays is based on apps. So, and when you get an opportunity from Google's own developer student club to go through this opportunity, I think all of you are excited for that, and that is why you are here. Here you will be taught Android Studio, Jetpack Compose, Kotlin basics. So now I would like to hand over to the facilitator for this Compose camp, Shomal. Yeah, I think my voice is again audible. Just sorry for the hiccup, guys. It was a technical glitch. Okay, we will be starting over again because there was some technical glitch. Okay, let's start. Okay, so as I was saying, we will be starting with all over again. So let me just tell you from the start. Here in this Compose camp, यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, एक नेटिव ऐप बनाएंगे, नेटिव एंड्रॉयड ऐप जो बेसिकली बहुत ही परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होगा, ना ज़्यादा रैम खाएगा ना ज़्यादा कुछ करेगा, एकदम जितना ऐप को जितना होना चाहिए उतना ही करेगा. तो उसके लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, नेक्स्ट साइड प्लीज. हम लोग बेसिकली एक आईडीई इंस्टॉल करेंगे, जिसे कहते हैं आईडीई का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. ये इसके लिए हम एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए हम जो आईडी यूज करते हैं इसे कहते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो. एंड्रॉयड स्टूडियो तुम्हारा गूगल का बनाया हुआ जेटपैक का दोनों का कोलैबोरेशन से बना हुआ है. तो हम लोग एंड्रॉयड स्टूडियो सर्च करते हैं. लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन. हम कैसे डाउनलोड करते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो मैं तुम लोग को दिखाता हूँ. जस्ट फॉलो विथ मी. Shaurukh, can you just stop the screen share? तुम मेरे साथ एक नया टैब खोलो और वहां पे सर्च करो एंड्रॉयड स्टूडियो. पहला वाला जो लिंक आएगा यहाँ पे डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो, यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल
यहाँ पे हम लोगों को बेसिकली यहाँ पे डाउनलोड का बटन क्लिक करना है। यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, यहाँ पे आई एग्री, उसके बाद डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो, ये तुम्हारा डाउनलोड लगेगा। तुम लोग क्रोम पे हो तो सेव एज कर सकते हो, या मेरे साथ मेरे जैसे एज पे हो तो ऐसा ओपन कर सकते हो उसको। तो ये थोड़ा डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इन द मीन टाइम हम लोग क्या करते हैं, अपने कोर्स में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसमें आएंगे वापस फिर से। स्वरूप, कैन यू रिज्यूम? तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा जो ये एंड्रॉयड ऐप डेवलप होगा, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेवलप होगा जिसे कहते हैं कॉटलिन। अब कॉटलिन एक ऐसा लैंग्वेज है जो गूगल रिकमेंड करता है एंड्रॉयड ऐप बनाने के लिए। ये कॉटलिन तुम्हारा ओल्ड तुम्हारा जावा का जो जेवीएम होता है उसके ऊपर चलता है। तो और कॉटलिन का यहाँ पे कुछ फीचर्स है जो बेसिकली इसको आइडियल बनाता है, जैसे नल सेफ्टी फीचर, जिससे तुम्हारा ऐप क्रैश होने के चांसेस बहुत कम हो जाता है। तो गूगल इसीलिए तुम्हारा कॉटलिन को रिकमेंड करता है। और कॉटलिन का सिंटैक्स भी बहुत कंसाइज होता है, नॉर्मल जावा से कॉटलिन का सिंटैक्स बहुत कंसाइज होता है, तो तुम्हारा कोड राइटिंग का प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। और क्योंकि नाल सेफ्टी होता है तो वहां से तुम्हारा वो ऐसे नाल आके ऐप क्रैश हो गया, ये सारी चीज भी बहुत कम होता है। नेक्स्ट स्लाइड। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोगों को बहुत सारे लोग यहाँ पे होंगे जो कॉटलिन से फेमिलियर नहीं है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कॉटलिन का पहले बेसिक सीखेंगे। तो बेसिक सीखने के लिए प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में बहुत सारे ट्रेडिशन चलता है, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। तो हम लोग पहले कॉटलिन का हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम सीखेंगे। और कॉटलिन का हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम सीखने के लिए हमको कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए अभी के लिए जरूरत नहीं है। अभी ये जो यूआरएल दिख रहा है यहाँ पे ग्रीन कलर के बार में, वो तुम लोग अपने टैब में टाइप करो, या तुम लोग ऐसा सर्च करो कि कॉटलिन प्लेग्राउंड, दोनों तरीके से ही हो जाएगा। प्रेफरेबली कॉटलिन प्लेग्राउंड ही सर्च कर लो, जिससे हो जाएगा। Guys, we will be checking on the Q&A in the last part. Okay, just keep your questions. तो हम लोग क्या करते हैं, कॉटलिन प्लेग्राउंड में चलते हैं। आप स्टॉप द स्लाइड प्लीज। तो हम लोग यहाँ प्लेग्राउंड, हमको गूगल का developer.com पे लेके आता है। और यहाँ पे यहाँ पे जो आता है, ये कोड बाय डिफॉल्ट आता है। ये कोड बेसिकली हम लोग का हेलो वर्ल्ड प्रिंट करता है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, ये अगर हम इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। पहले रन करते हैं, उसके बाद मैं समझाता हूँ एक एक पार्ट क्या करता है। यहाँ से हेलो वर्ल्ड प्रिंट करता है। अब जो लोग पहले से जावा किए हो या C++ किए हो उनको पता है, और जो जो नया भी है उनके लिए भी बता रहे हैं कि कुछ जैसे कॉटलिन, जावा, C++ में इन सब का तुम्हारा कोड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से। इसे कहते हैं मेन फंक्शन। तुम कुछ भी लिखो पर तुम्हारा कोड का स्टार्टिंग होगा ये मेन फंक्शन से। तो Hello, कॉटलिन Shomal. में Can you just reshare your whole screen? I think some people are saying that the screen is freezed. So just stop sharing and reshare the whole screen one more time.
is my screen visible right now? Yeah. Yes, visible. Continue. Okay. Fine. तो यहाँ पे भी अच्छा ठीक है, चलो तो पहले से बोलते हैं क्या होता है। तुम जब कॉटलिन प्लेग्राउंड खोलते हो तो पहला ये कोड लिखा हुआ आता है। इस कोड को अगर हम यहाँ से रन करेंगे तो ये लिखा हुआ था, जो आउटपुट आता है उसे कहते हैं, वहां पे लिखा होता है हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ पे हम कोड को पहले समझते हैं। जो लोग जावा या सी प्लस प्लस करके आए हो उन लोगों को पता होगा कि तुम्हारा कोड का एग्जीक्यूशन हमेशा मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। जो लोग नए हैं उनको भी बता रहे हैं कि हमेशा हमेशा हर लैंग्वेज में नहीं, पर बहुत से स्टैटिकली टाइप लैंग्वेजेस में एक कोड का एग्जीक्यूशन पॉइंट का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एग्जीक्यूशन का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जो होता है मेन फंक्शन। तो ये है मेन फंक्शन यहाँ पे। और कॉटलिन में हम लोग एक फंक्शन का डिक्लेरेशन करते हैं फन कीवर्ड से, जैसे पाइथन में डेफ लिखते हैं और जावा में जैसे नॉर्मल रिटर्न टाइप देके लिखते हैं, यहाँ पे बेसिकली लिखते हैं फन। इस कीवर्ड का मतलब है, अभी हम कॉटलिन कंपाइलर को बताएंगे कि इसके बाद हम एक फंक्शन डिक्लेयर करने जा रहे हैं। अब ये प्रिंटलिन क्या है, इसका एक फुल फॉर्म है प्रिंट लाइन। तो प्रिंट लाइन के अंदर हम एक चीज डाल रहे हैं जिसका एक स्ट्रिंग डाल रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। तो ये हो गया। तो हम लोग इसको अगर रन करेंगे तो कॉटलिन कंपाइलर पहले यहाँ पे आएगा, वो देखेगा कि फन लिखा हुआ है, मतलब यहाँ से कोई फंक्शन डिक्लेयर हो रहा है। उसके बाद ये मेन फंक्शन है, तो कॉटलिन कंपाइलर को पता है कि मेन फंक्शन जहाँ पे भी हो वहीं से हमको स्टार्ट करना है। तो मेन फंक्शन के अंदर आएगा और वहां से प्रिंटलिन स्टेटमेंट देखेगा। तो प्रिंटलिन स्टेटमेंट के अंदर जो है ये प्रिंट करके ये फंक्शन खत्म हुआ तो तुम्हारा एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा। ये बेसिकली है तुम्हारा टोटल वर्क फ्लो। ठीक, अब हम पैरेलली चलते हैं फिर से पीपीटी में वापस। resume the PPT please. Next slide. जैसे यहाँ पे मैंने तुमको पहले ही बोला कि फन कीवर्ड उससे स्टार्ट होता है। नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो तुम्हारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे पहला पार्ट क्या होगा, एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम जो सबसे बेसिक पार्ट होता है। उसके बाद क्या आता है, वेरिएबल्स। अब वेरिएबल एक प्रोग्रामिंग में क्यों चाहिए होता है, वेरिएबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्यों चाहिए होता है, क्योंकि तुम प्रोग्राम करते हो जनरल केस के लिए, तुमको स्पेशल केस के लिए बहुत रेयरली प्रोग्राम करते हो। तो तुम्हारा प्रोग्राम में ये कभी मैटर नहीं करना चाहिए कि क्या इनपुट आया उसके ऊपर तुम्हारा आउटपुट डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं कि कोई भी इनपुट आए तुम्हारा आउटपुट कांस्टेंट होगा, ऐसा बहुत रेयर केस में होता है। तो वेरिएबल उसी के लिए यूज होता है ताकि जो भी इनपुट आए तो हम आउटपुट दे पाए। तो कॉटलिन में दो टाइप के वेरिएबल्स होता है, एक होता है कांस्टेंट वेरिएबल्स, एक होता है नॉर्मल वेरिएबल जिसका वैल्यू चेंज होता है। अब कांस्टेंट वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं वैल कीवर्ड से, और तुम्हारा नॉर्मल जो वेरिएबल होता है जिसका कीवर्ड जिसका वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं वो डिक्लेयर करते हैं var कीवर्ड से। अब वैल कीवर्ड में क्या होता है, अभी तुम एक वैल्यू असाइन कर दिए उसको, उसके बाद तुम उसको चेंज नहीं कर सकते, ये एज अ कांस्टेंट काम करता है। और वैर तुम एक बार कुछ वैल्यू डाले उसके बाद वो वैल्यू चेंज हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो तुम्हारा कॉटलिन में बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे सी प्लस प्लस जावा में भी कॉटलिन में बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं। जैसे स्ट्रिंग हो गया तुम्हारा नॉर्मल से वर्ड्स के लिए, स्ट्रिंग वर्ड्स या टेक्स्ट जो भी बोलो उसके लिए स्ट्रिंग होता है। इंटीजर होता है नंबर्स के लिए, जो INT कीवर्ड होता है वो नंबर्स के लिए होता है। डबल एक होता है जो बेसिकली तुम्हारा बहुत प्रिसाइज डेसिमल नंबर होता है, वो होता है डबल। फ्लोट एक होता है, वो भी डेसिमल नंबर होता है पर वो उतना ज्यादा प्रिसाइज नहीं होता है। तुम कुछ ऐसे तुमको नॉर्मल डेसिमल नंबर से तो पता नहीं चलेगा, तुमको लंबा कोई डेसिमल नंबर आएगा तब तुमको पता चलेगा कि फ्लोट थोड़ा सा कम प्रिसाइज है डबल से। उसके बाद होता है बुलियन वैल्यू, बुलियन मतलब ट्रू फॉल्स 0 1 ऐसा।
बेसिकली जिनके दो ही स्टेप्स होते हैं वो होता है बुलियन वेरिएबल्स। नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो ये तुम लोग जो कॉटलिन का प्लेग्राउंड खोले हो वहां पे भी तुम लोग कर सकते हो। ये यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, एक वाल कीवर्ड लिखो, लिखा हुआ है वैसा तुम लिखो। पहले var का मत लिखो, पहले val का लिखो, या let me just show it to you guys and code it along. Let's do this. Stop the slide for a moment. चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्रिंटिंग कीवर्ड को हटाते हैं पहले। Let's write val. Okay. अब यहाँ पे इसको हम प्रिंट कर लेंगे। तो यहाँ पे आया देखो हेलो। अब क्या है, क्योंकि हम पहले से बोल के आए कि वैल को हम रीअसाइन नहीं कर सकते या वैल का वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, तो ट्राई करते हैं ये में कुछ और डालने का। उसके बाद फिर से उसको प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कॉटलिन कंपाइलर हम लोगों को क्या बोलता है। वैल कैन नॉट बी रीअसाइंड, पर इसी वैल को अगर हम इसको var कर देंगे तो देखो हो जाएगा। कॉटलिन में बहुत ही सिंपल, कांस्टेंट के लिए वैल और जो वेरिएबल होगा उसके लिए var। ठीक, ये हो गया तुम्हारा यहाँ पे कॉटलिन का मेन कांस्टेंट और नॉर्मल इंटीजर। अब देखो यहाँ पे स्ट्रिंग होता है, इंटीजर के लिए हम लिखेंगे int। यहाँ पे तो तब तो ये नहीं हो पाएगा, तब ये हमको वन इंटीजर को ही वैल्यू देना होगा, ऐसे करके होगा। पर 99% केसेस में ये चीज देना नहीं होता है, 1% केसेस में होता है। क्योंकि 99% केसेस में मेजरली क्या होता है कि कॉटलिन कंपाइलर ये वैल्यू से उसका डेटा टाइप इन्फर कर लेता है। तो यहाँ पे अगर हम इंटीजर नहीं भी लिखेंगे तो यहाँ पे कॉटलिन कंपाइलर को पता चल जाएगा कि ए का वैल्यू क्योंकि एक इंटीजर है तो ए का डेटा टाइप इंटीजर होगा। तो ऐसे यहाँ पे इसको एरर थ्रो नहीं किया यहाँ पे। पर कोई मतलब नीश केसेस होता है जहाँ पे तुमको एक्सप्लिसिटली मेंशन करना होता है कि हाँ ये इसका डेटा टाइप है। चलो फिर से पीपीटी में वापस चलते हैं। अब देखो हम लोगों ने डिफाइन तो कर लिया, पर इसका सिंटैक्स बेसिकली क्या होता है। वैल मतलब तुम्हारा जो कीवर्ड हो गया वैल, अगर हम कांस्टेंट का एग्जांपल ले रहे हैं तो वैल, उसके बाद वेरिएबल का नाम। जैसे तुम देखोगे यहाँ पे ये जो काउंट लिखा हुआ है, ये काउंट तुम्हारा है वेरिएबल का नाम। उसके बाद काउंट का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, इसीलिए int लिखा हुआ है। और ये जो वैल्यू है, जो वेरिएबल का वैल्यू है वो है 2। उसी वही जैसा तुम अगर नेक्स्ट वाले एग्जांपल पे जाओ, var कार टोटल बेसिकली तुम्हारा एक वेरिएबल का नाम है और 0 है उसका इनिशियल वैल्यू, पर उसका वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं बाद में। कार टोटल को हम बाद में 20 किए हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन क्या होता है, ये बहुत ही एक तुम्हारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तुम समझो तुम्हारे ऐप में ऐसा कहीं पे है कि हे, उसके बाद तुम अपना यूजर का नेम देना चाहते हो, तो तुमको हर एक यूजर का तो नाम तुमको पहले से नहीं पता होगा। आज 100 यूजर है, कल 1000 यूजर होगा, तुमको पहले से तो नहीं पता कौन से यूजर का क्या नाम है। तो तुम तब कैसे तुम उसको डील करोगे, उसके लिए आता है स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। मतलब स्ट्रिंग बेसिकली तुम्हारा एक कांस्टेंट पार्ट होता है, पर उसमें से हम कुछ कुछ पार्ट्स को डायनामिक कर सकते हैं एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे बेसिकली क्या किया हम, यहाँ पे एक तुम्हारा वैल है, मतलब यहाँ पे दो वैल टाइप का वेरिएबल्स है, एक है 100 काउंट, उसके बाद रेड काउंट। तो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं यू, प्रिंट में क्या कर रहे हैं, यू हैव एक $, उसके बाद एक कर्ली ब्रेस,
उसके अंदर हम लिखे हैं अनरीड काउंट प्लस रीड काउंट। ये जो डॉलर साइन देने के बाद काली ब्रेस के अंदर हम जो भी लिखते हैं ये होता है डायनेमिक। ये तुम्हारा एज अ कॉटलिन कोड काम करता है। कॉटलिन जब ये डॉलर साइन और काली ब्रेस जब देखता है तो कॉटलिन को पता चल जाता है कि ये कोई स्ट्रिंग नहीं है, पर स्ट्रिंग के अंदर छुपा हुआ कॉटलिन का कोड है। तो कॉटलिन का कंपाइलर ये जो काली ब्रेसेस के अंदर इसको कंपाइल करता है और इसका रिजल्ट डाल देता है ये डॉलर के बाद जितना भी सारा वो डायनामिक पार्ट है वहां पे। तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, तो 100 + 5 यू हैव 105 टोटल मैसेजेस इन योर इनबॉक्स। तो ऐसे हो जाएगा, ये डॉलर साइन के बाद जो भी चीज है वो रिप्लेस हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में देखो वैसा किया है हमने। नेक्स्ट स्लाइड। नॉट ओके। तो ये चीज तुम अगर खुद में भी ट्राई करोगे तो ये होगा। अब कमेंट कैसे करना या और कमेंट क्यों करना ही क्यों है, तो कमेंट बेसिकली ऐसा करना कि तुम सोचो तुम आज एक कोड पे काम कर रहे हो, तुम एक हफ्ते का छुट्टी लिए, उसके बाद तुम फिर वापस आए। ये बहुत बार होता है, तुमको खुद पता नहीं चलता तुम खुद क्या लिख के गए हो। और तुम अगर कोई कंपनी में काम करते हो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तुम क्या किए हो बाकी लोगों को भी पता चले। ऐसा नहीं कि तुम आज नौकरी छोड़ दिए, दूसरा कोई आया, किसी को पता नहीं चल रहा तुम क्या लिख के गए हो। तो इसके लिए कमेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कमेंट हम दो तरीके से हो सकते हैं। अगर कोई तुम्हारा कोई छोटा कमेंट हुआ जो सेम एक लाइन में खत्म हो जाएगा तो तुम ये डबल स्लैश दे सकते हो, वहां से तुम कमेंट लिख सकते हो। पर तुम सोचो कोई लंबा वाला कमेंट लिखना है कि हाँ, तब हम लोग बेसिकली ये देते हैं एक स्लैश एक स्टार, और स्टार कंटिन्यू करता जाता है और लास्ट में फिर से एक स्लैश। ये होता है मल्टी लाइन कमेंट्स। नेक्स्ट। अब पहले हम बता के ये फंक्शन। अब फंक्शंस बेसिकली लिखने के लिए यहाँ पे जनरल सिंटेक्स ये होता है फन कीवर्ड, उसके बाद फंक्शन का नेम, उसके बाद तुम्हारा फर्स्ट ब्रैकेट या पैरेंथेसिस, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम बेसिकली फंक्शंस का टोटल जो बॉडी होता है वो लिखते हैं। नेक्स्ट। यहाँ पे तुम्हारा बेसिकली एक सबसे बेसिक कोड है जहां पे हम दो फंक्शन से डील कर रहे हैं। अब कॉटलिन में क्या है, तुम अपना फंक्शन का नाम कुछ भी डाल सकते हो, पर मेन फंक्शन बेसिकली एक ही होगा। ये तुम्हारा एक रेस्ट्रिक्शन। कॉटलिन में ये नहीं हो सकता कि मेन फंक्शन 3-4 होगा, तो कॉटलिन कंपाइलर को पता नहीं चलेगा कि कहाँ से स्टार्ट करना है। तो मेन नाम का फंक्शन एक होगा, बाकी तुम कुछ भी नाम का फंक्शन डालो। यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा बर्थडे ग्रीटिंग, ये मैंने एक कस्टम फंक्शन बनाया जिसके अंदर दो प्रिंटलिन स्टेटमेंट्स है। एक है हैप्पी बर्थडे रोवर और दूसरा यू आर नाउ 5 years old। अब क्योंकि कॉटलिन कंपाइलर मेन फंक्शन से स्टार्ट करता है तो हम इसीलिए बर्थडे ग्रीटिंग को कॉल किए हैं मेन फंक्शन से। कॉटलिन कंपाइलर पहले मेन फंक्शन में घुसेगा, उसी के बाद ही बर्थडे ग्रीटिंग फंक्शन को कॉल कर लेगा। तो बर्थडे ग्रीटिंग फंक्शन को कॉल कर लेगा, तब ये दो प्रिंटलिन फंक्शन एग्जीक्यूट करेंगे। ये होता है सबसे बेसिक पार्ट। अब नेक्स्ट स्लाइड। अब कभी कभी क्या होता है, जो पिछला जो फंक्शन था उसमें क्या था, कोई वैल्यू हम रिटर्न नहीं कर रहे हैं, हम बस प्रिंट कर रहे हैं। नहीं, कोई फंक्शंस के नाम नंबर ऑफ फंक्शंस के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन वैसे नहीं है। तुम जितना मर्जी चाहो कोई फंक्शन पर, एक प्रैक्टिकल एक लिमिट होता है। तुम चाहते हो कि डिफरेंट फाइल्स पे तुम्हारा ऐप डिवाइड हो जाए जिससे तुम्हारा मेंटेनेबिलिटी बढ़े। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली कभी कभी क्या होता है, तुम चाहते हो तुम्हारा फंक्शन बस एक वैल्यू रिटर्न करे, कोई प्रिंट नहीं करे एज सच। तो तब हम क्या करते हैं, फंक्शन का नेम, उसके बाद एक कोलन डालते हैं, उसका रिटर्न टाइप लिखते हैं। रिटर्न टाइप बेसिकली वही जो डेटा टाइप्स है, वही डेटा टाइप्स होता है रिटर्न टाइप्स। और नहीं तो जब तुम उप्स का कॉन्सेप्ट सीखोगे तो यहाँ पे क्लास भी डाल सकते हो गया ये। अब हम यहाँ पे लिखते हैं जो बॉडी, और उसके लास्ट में एक चीज लिखते हैं रिटर्न। उसके बाद जो वैल्यू रिटर्न करेगा ये फंक्शन एग्जीक्यूशन होने के बाद वो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, पहला वाला फंक्शन, ये दूसरा वाला फंक्शन देखो, पहले भी बर्थडे ग्रीटिंग था, ये भी बर्थडे ग्रीटिंग था। पर इस केस में राइट साइड के केस में क्या हो रहा है, अब हम डायरेक्टली प्रिंट कुछ नहीं कर रहे हैं, पर एक वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हैं। फंक्शन तुम्हारा कोलन देके स्ट्रिंग, मतलब ये फंक्शन अभी कॉटलिन कंपाइलर को पता चल गया ये फंक्शन स्ट्रिंग का टाइप का कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे
रिटर्न स्टेटमेंट लिख के यहाँ पे फिर से स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का यूज हुआ है। डॉलर नेम ग्रीटिंग मतलब वो नेम ग्रीटिंग कांस्टेंट का वैल्यू, उसके बाद स्लैश इन मतलब उसके नेक्स्ट लाइन पे आएगा एज ग्रीटिंग। नेक्स्ट स्लाइड पे अब देखो तुम्हारा बहुत लोग, हम देखे बहुत सारे फोर्थ ईयर्स भी ये गलती करते हैं कि उनको पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स में मतलब पता नहीं चलता। ये लोग बहुत ही इंटरचेंजेबली बहुत यूज होता है पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स, पर ये दोनों अलग चीज होता है। Guys, just give me a second. So I hope everyone is following the session and keep coding along with your facilitator. And whatever doubts you have, keep asking, and all your doubts will be answered individually at the end of this session. So can I have a quick reply in the chat? Are you guys liking the session? Okay, I can see a lot of replies. Thank you so much. Okay, so I am back. Sorry for that. So देखो पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स दोनों अलग चीज होते हैं। पैरामीटर क्या होता है, जब हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं तब हम जो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर डाल रहे हैं तो वो होता है पैरामीटर। जैसे तुम यहाँ पे लेफ्ट साइड वाले चीज में देखो, यहाँ पे तुम्हारा क्या लिखा है, नेम स्ट्रिंग, जो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर है वो होता है पैरामीटर। ये नेम टाइप का एक वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग, वो हम बेसिकली फंक्शन के अंदर ले रहे हैं, वो पैरामीटर होता है। वो पैरामीटर अब हम फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं। अब आर्ग्यूमेंट क्या होता है, जहां से फंक्शन कॉल हो रहा है वहां से हम जो चीज पास करते हैं वो होता है आर्ग्यूमेंट। समझ में आया? जब हमको एक बार चैट में बोलो क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग चीज है। अच्छा नो क्या ओके रिपीट करना है, ठीक है चलो। स्वरूप कैन यू प्लीज गो बैक टू द नेक्स्ट। कैन यू सी देखो पहले हम क्या करते हैं, पहले तुम बहुत लोग अगर C++ में की या कोई भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किया हो तो वहां पे क्या होता है, फंक्शन कॉल करने का एक चीज होता है। तो फंक्शन जब हम कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे देखो वो बर्थडे ग्रीटिंग को हम कॉल कर रहे हैं। यहाँ पे वो जो एक फंक्शन है बर्थडे ग्रीटिंग करके, वहां पे हम पास कर रहे हैं एक स्ट्रिंग जिसे कहते हैं, जहां पे लिखा है रोवर। ये जो रोवर जो पास हो रहा है फंक्शन कॉल के टाइम पे, इसे कहते हैं आर्ग्यूमेंट। समझे? और स्वरूप प्रीवियस स्लाइड, ये जो नेम है यहाँ पे बर्थडे ग्रीटिंग के नाम पे, बर्थडे ग्रीटिंग जब फंक्शन का हम डिफाइन कर रहे हैं वहां पे जो नेम लिखा हुआ है वो है पैरामीटर। मतलब रोवर जो वैल्यू है वो नेम के अंदर आ रहा है, तो नेम हो गया तुम्हारा पैरामीटर और रोवर हो गया आर्ग्यूमेंट। नहीं, आर्ग्यूमेंट फंक्शन बॉडी के अंदर नहीं लिखा होता, पैरामीटर फंक्शन बॉडी के अंदर होता है। आर्ग्यूमेंट में फंक्शन कॉल करने के टाइम हम लोग वैल्यू जो पास करते हैं उसे कहते हैं आर्ग्यूमेंट, और जो फंक्शन डेफिनेशन के अंदर हम जो चीज यूज करते हैं उसे कहते हैं पैरामीटर। नेम यहाँ पे पैरामीटर है और जो रोवर था वो वहां पे आर्ग्यूमेंट हो गया। ये दो अलग चीज है। फिर से बताओ, हमको समझ में अगर नहीं आया तो हम कोड में करके दिखाते हैं। एक बार चैट में लिखो। ये चीज समझना बहुत मतलब डिफिकल्ट भी नहीं है पर थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ठीक है चलो, एग्जाम्पल चाहिए तो मैं कोड में करके दिखाता हूँ। ओके, आई थिंक
just one guy said like, can you get an example? Okay, can you stop the slide please? देखो बैकग्राउंड में अगर एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड हो गया है तो उसको क्लोज मत करो, ठीक है, उसको रहने दो बैकग्राउंड में। ये मेन फंक्शन रहने दो, यहाँ पे एक और फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन ग्रीट नेम स्ट्रिंग। अभी कुछ रिटर्न ही नहीं करता, सबसे बढ़िया सिंप्लिसिटी के लिए कुछ रिटर्न नहीं करता। ये हो गया void, मतलब रिटर्न टाइप void हो गया। चलो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं println फिर से डॉलर और कार्ली ब्रेस और यहाँ पे नेम। ये डॉलर कार्ली ब्रेस के अंदर नेम का मतलब है हम यहाँ से ये नेम का वेरिएबल यूज कर रहे हैं, और यहाँ से लेट मी पास रीड। तो यहाँ पे जो TMSL गया ये हो गया तुम्हारा, और ये जो TMSL इस नेम वेरिएबल के अंदर एज अ वैल्यू, तो नेम है तुम्हारा यहाँ पे पैरामीटर और TMSL है आर्ग्यूमेंट। तो इसको अगर हम रन करेंगे यहाँ पे तुम्हारा क्या आएगा, गुड इवनिंग TMSL। तो हम यहाँ पे अगर TMSL की जगह कुछ और पास कर दें, तो वही मेरा पैरामीटर मेरा सेम ही रहा नेम। ये बेसिकली नेम एक तुम्हारा वेरिएबल का नाम, तुम ऐसा सोचो नेम एक वेरिएबल का नाम है और TMSL GDSC उनका वैल्यू है। तो वैल्यू को हम कहते हैं फंक्शन कॉलिंग के केस में वैल्यू को कहते हैं आर्ग्यूमेंट, और जो वेरिएबल का नाम है उसे कहते हैं हम लोग पैरामीटर। तो पैरामीटर डायनेमिकली अपना वैल्यू चेंज करता रहता है और अपना आर्ग्यूमेंट चेंज करता रहता है। अब समझ में आया? Okay, we will just take up a 5-minute break and I will hand over the mic to Abhiru. Hi everyone, am I audible and visible? Team, please let me know. Yeah, you are visible. Okay, great. So अभी तक कैसे चल रहा है सेशन? Let me know in the chat box. कैसा चल रहा है? अच्छा लग रहा है? Okay, must, great. Okay. I am very excited to get such a great response specifically for our first session, and I hope ये तो बहुत कुछ चल रहा है. Can you please show yeah, we will get back to the presentation as soon as I'm done talking, and you will get back to it. Acha. So the very reason I took over right now is to tell you about some very interesting announcements that I have for you. This is basically a boot camp that we are organizing as a part of GDSC Technomain Salt Lake, and it's initiative towards making you understand more about these technologies. We'll have a lot of technologies for that sake. To start off, you can let me know in the chat box what next technology you would like to see. We have options for ML, we have options for AI, we have options for Flutter, a lot of these technologies, anything that you can and everything you can think of, we will have this. So let's see the votes for, okay, I'm getting a lot of AI and ML, Flutter, okay, DevOps, somebody is very, okay, Chovik, that's great. AI, ML, Flutter, okay. So I think a lot of you are interested in AI, ML, so we will definitely get back to you. We actually have some events planned for you. So I hope everybody is connected with the GDSC TMSL page on our website. If not, please do go back to the same link that you have entered into this website. You will find the chapter link. Please do log in. You'll have a WhatsApp link as well as the Discord link.
please be present in both so that you do not miss out on any opportunity. Somebody is interested in hacking, great. We do have something planned for you as well. We will be having something on cybersecurity. Yeah, somebody is overly excited. I see that. Okay, great. We will get back on those chapters as well. Now, here is something very interesting and something that's very different from what you would be expecting out of a coding bootcamp. The thing is, we are over here learning the basics of Kotlin, right? And this is one of the programming languages that we will use to develop an app. जिस लोगों को डिस्कॉर्ड का लिंक नहीं मिला, you will have received an email, and in that email you will get both the links of WhatsApp and Discord. Please go and check your spam folder or your regular folder. You will definitely get the link. Coming back to what I was saying, so abhi we have a very different approach to this actually. So as you know, while you were joining and registering for this particular event, you were asked to form teams. अगर किसी के पास teams नहीं बने हैं, that is also fine. We do encourage you to create teams with others, but अगर नहीं है तो that will also happen. जिस लोग के पास Discord का links नहीं आ रहा, please hold on. After the session, we will share the Discord link. No worries. Abhi, do not spam the chat box. You will miss out on the feasible information. Just listen to me right now. So moving on, we will have a very different approach actually. So क्या करेंगे? We will be creating an entire app from scratch. We will be using Kotlin as the basic programming language, and we will create a new app. Now, when I talk about creating a new app, I hope everybody is very excited about this whole thing, right? So let me know about what are the. So many of you must have ideas about what kind of app do you want to build, right? So give me a few ideas. What are the ideas on which you want to build an app on? What do you think are recent battery saver app? Yes, definitely. I'll tell you what, I need that personally. I need a battery saver app. My battery just dies after I get to college. What do I do, man? Okay. New social media platform. That is a very ambitious one, right? Devoshmita, that's a very ambitious one. We can do that. That is definitely a good idea. TMSL communication app. Great. That is a great idea. But I think we also have students outside of TMSL, right? So we can rather do an app which encompasses the student community, maybe a GDSC communication app, right? That sounds good. Okay. Note maker, yes. To-do list तो सबको ही बनाता है. To-do list बनाता है. Let's think big. Think थोड़ा big. Automatic assignment completion app. Okay, great. Definitely what I'll be looking for as well. A student community. Yes. So Shayok also gave a great idea. I guess no app you can save your battery life. Sad part, bro. Sad part. But I do need one. An ebook store. You already have a lot of books, Rishita. Why do you need an ebook? Okay. Attendance. This show we actually had a very similar app. We were I think many of you actually attended the event we had, right? The GDSC intro session. If you did or if you did not, we had an app also which we were developing on this particular thing where we used the QR code. Like everybody has received a ticket, right? And these tickets we will be using, and we were using rather, to get a unique ID for every user. And you know, we can use that and track and get attendance also. And you think about a real life application, like you are in college, you must be having attendance and everything. So instead of you wasting 5 minutes of calling out names and getting the attendance, you can just use an app while entering through the door or leaving the door, and you get your attendance checked. So that I think is a very good example. SOS app, okay. Automation app, e-rickshaw booking app. Yeah, that is a very great idea actually. Free all-in-one. Okay, so I think one thing we understood from this is all of you have a very crash detection app. Okay, did you really get inspired by the new Apple series? The Apple. I think many of you watched the Apple series that came out last day, right? The Apple watches that have a detection of crash. Like if you are in a car crash or something, it will detect that and it will let you know. Yeah, right.
So everybody got interested in that. It's all the same SOS emergency and that crash detection, right? So yeah, so moving back, so as I was saying, you all have a great idea. You have great ideas on what you want to do, and I think through this particular session, you will be getting a lot of ideas as well, and as to how to create as well, right? The new apps. But what is important right now is we get back to learning from basics and developing these apps. So when we develop these apps, I think it's very important that we have one goal in mind. So the goal that we, as on behalf of GDSC, we are trying to put forward is basically we are going to create apps which you can publish, right? And these apps which you will publish will needs to, like, generate money. I hope everybody loves money, right? I am going to get a lot of spam in the chat box for saying this, but do go ahead. Let's see. So the thing is, when we get back and when we create these apps, we need to have a model which is very sustainable, so that all of these apps, like even if you're copying Apple and making an SOS emergency, or as somebody said, automatic assignment, if you're doing that as well, or even the attendance tracker. So we need to have an idea which we are feasible enough so that you yourself can actually build the, after building that app, keep it on. Like we will be here, you will be here as a part of this for how many more years? 2 years, 3 years after you graduate from college. Probably you will not get the chance to be in the student club, like as a student, right? Because it's for students. But we want you to have an app which will go on beyond this. So yeah, we will be having certain sessions actually, which will help you to craft an idea, like you said, and help you in getting that on board into the real platform as well. Along with that, we will also help you to get the business part of it, like get some money out of it. True as well. So I hope, how many of you are actually excited about this money part? Let me know. Because we are thinking of getting some guests as well, people who will be helping us with the ideation and money wala part. So if you are really interested, okay, somebody is excited about paisa, okay. Sure, definitely. Paisa to sabko pasand hai, obviously. But let me know, like, what are you thinking in mind? What do you have in mind? And accordingly, we can actually get you people who will help you out. So ये तो फर्स्ट सेशन था, इसलिए हम लोग उतना ज्यादा लोगों को बुलाया नहीं, लेकिन फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन वी विल एक्चुअली हैव गेस्ट जो बाहर से आएंगे, एंड अपार्ट फ्रॉम योर टेक्निकल पार्ट्स आल्सो, जो यहाँ पे अभी शोमालो पर आ रहा है, या फिर इसके बाद स्वरूप थोड़ा दिखाएगा डिजाइनिंग का पार्ट. We will be having external guests as well who have their own apps, right? We have people from our city, from our country, even from outside, who have their own apps, who are developing businesses, and they are pretty rich, trust me. So, okay, what is a pro calculator? I'm very excited about this. Siddharth, let me know. Siddharth, please let me know what is this pro calculator. And if anybody else also has an idea on this, I really want to know. It's a good idea. New outfits before buying. Okay. I think Pujo is coming. So somebody got into the Pujo mode very early. Okay. Great on that. So yeah, we are thinking of something on those lines, and do let me know. You have the channels, like you have your WhatsApp, you have your Discord. So do let us know what we are trying to do this. So let's get back to the session. I'll not take any more time. You can use your channels to communicate to any of us and let us know your ideas, what you are thinking, and if you have any preferences, right? So Sharup, you can start with the presentation, and we will get back to this presentation right away. ओके चलो, सेशन थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ और तुम लोग बस सुन जा रहे हो. तो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, जो एक कोड होगा तुम लोग ये चैट पे हमको डालना, ठीक है? क्वेश्चन ये है, तुम लोग एक फंक्शन बनाओ जो फंक्शन बर्थडे हैप्पी बर्थडे बोलेगा, हैप्पी बर्थडे कॉमा कोई यूजर का नेम, ठीक? यूजर का नेम तुम मेन फंक्शन से दोगे और हैप्पी बर्थडे एक अलग फंक्शन होगा. हैप्पी बर्थडे फंक्शन को कॉल करोगे और वो बेसिकली मेरा आउटपुट चाहिए हैप्पी बर्थडे कॉमा किसी का नाम.
ऐसे करके कोई बना सकता है तो मेरे को कोड भेजो, मैं 5 मिनट या 6 मिनट वेट करता हूँ. लेट्स सी. Okay, function main val a equal to Devanjan, greeting function greeting name string. Yeah, good. This was good. Let's see others. Greetings. Okay, okay, okay. Dipanjali, correct. Yeah, correct. Yusuf, correct. Yusuf, let me see. Uh, Yusuf, I think you need to like correct your code because there is too much. Okay, just keep sending. Let me see what others have got. Okay, Ankit, what have you written? Happy birthday. Oh, okay. Okay. As I can see, many of you are getting it correct. So let me just, many of you are getting it correct. Oh, I am really happy. Right? Yeah. Okay, chal. So we are going to level it up. Next slide, please. Next slide. Next slide. Okay, let's see. Like कभी कभी ये होता है कि एक से ज्यादा पैरामीटर मेरे को चाहिए होता है. Many times we have functions like that accept more than one parameters. So in that case, what do? We do like in the parentheses only. जो हम फर्स्ट ब्रैकेट डिक्लेयर करते हैं वहीं पे हम लोग क्या करते हैं, पहले तो नेम था, उसके बाद कॉमा डाल के एज डाल देता है. समझो वो एज है, ये एग्जांपल के लिए हम एज बोल रहे हैं, कुछ और भी हो सकता है. जैसे इस कोड में है कि कॉमा नेम के बाद नेम जो है वो तो है, उसके बाद कॉमा एज, एज का टाइप है इंटीजर, नेम जो पैरामीटर है उसका टाइप है स्ट्रिंग, एज जो पैरामीटर है उसका टाइप है इंटीजर. The name parameter is of type string and age parameter is of, and the function return type is also integer. Okay guys, as I see your code is good. उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, दो वेरिएबल जैसे पहले से था, एक तुम्हारा नेम ग्रीटिंग, उसके बाद एज ग्रीटिंग. तो वहीं पे हम लोग क्या करते हैं, नेम ग्रीटिंग, उसके बाद एंटर देके नेक्स्ट लाइन पे होता है एज ग्रीटिंग. ऐसा हो गया. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अब आता है नेम्ड आर्ग्यूमेंट. ये नेम्ड आर्ग्यूमेंट क्या होता है, ये थोड़ा ध्यान से सुनना. व्हाट इज नेम्ड आर्ग्यूमेंट? Named argument is something like there are many cases where we do not really follow the order at which the parameters are declared, or we do not know the sequence in which the parameters are declared. In that case, what we do is, we while passing the arguments, it's no more in the parameter section, it is the argument section. Named argument, it is no more a parameter. Remember that. In the argument section, we directly write the parameter name, give a equal sign, and give the parameter value. Like this, if we exchange the sequence also, the whole things remain same, because Kotlin compiler now knows which argument belongs to which parameter, and it no more get confused. Let me show you by an example. Stop this slide, please. Let me build upon this code example only.
and let me now just return something for the sake of leveling up. Let me get rid of this function call, and let me just do it here. So as you see, the parameter sequence is, the first parameter is name and the second parameter is age. But assume this function is not visible to you, but just there is a function called grid that I have to call. So what do you do now? You can directly pass, if you know the function parameter sequence, you can do like TMSL and comma 30 maybe. I don't know. Let me just maybe some technical stats. Just refresh this part. Okay, sorry, my bad. I did not print it. Now you see, assume this is the case that you can see the function. You know the function's parameter list, but in case you do not know the parameter sequence, what do? You like name equal to TMSL, age equal to 30. Now the output remains same, and if I exchange these things, if I put age first and then name, then also the output remains same. What happens behind the scene is, now the Kotlin compiler knows that 30 belongs to age parameter and TMSL belongs to name parameter. So if I change this argument list also, the function does its work with no fuss. ठीक है ये? चलो अब पीपीटी में वापस चलते हैं. नेम्ड आर्गुमेंट तो ये हो गया. नेक्स्ट स्लाइड. अब डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है, ये थोड़ा क्यूरियस केस है. कभी कभी क्या होता है, हम लोग फंक्शन तो कॉल करते हैं, पर कुछ कुछ केसेस में हम लोग कुछ पैरामीटर्स हम लोग पास नहीं करते, या उनका चाहते हैं कि ये पैरामीटर्स ऑप्शनल हो जाए. हम पास अगर ये इस पैरामीटर का वैल्यू पास ना भी करें, इस पैरामीटर के अगेंस्ट कोई आर्ग्यूमेंट ना भी दे, तब भी मेरा फंक्शन चले. तुम जब एप्लीकेशन एक डेवलप करने जाओगे तब तुमको पता चलेगा कि ऐसे बहुत सारे कंडीशंस आते हैं कि तुम कोई पैरामीटर का वैल्यू नहीं देना चाहते, पर फिर भी तुम चाहते हो कि तुम्हारा फंक्शन एग्जीक्यूट करे. उसके लिए होता है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स. डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है, तुम फंक्शन कॉल के टाइम पे कोई आर्ग्यूमेंट अगर उस पैरामीटर के लिए पास नहीं करते, तब भी वो पैरामीटर का एक डिफॉल्ट वैल्यू होता है. मतलब अगर तुम कुछ पास नहीं करते तब ये लेगा, अगर तुम कुछ पास कर देते हो तब वो डिफॉल्ट वैल्यू ओवरराइड हो जाएगा. तो वही यहाँ पे ये रोवर है. मतलब तुम समझो कि ग्रीटिंग वाले कोड में पहले से अगर हम TMSL डाल देते, तो हम लोग अगर हम पहले से ये डाल देते कि नेम कोलन स्ट्रिंग इक्वल टू TMSL, और उसके बाद हम कुछ पास नहीं करते, तो वो बाय डिफॉल्ट TMSL. अगर हम कुछ पास कर देते, समझो GDSC पास कर दिया आर्ग्यूमेंट से, तब वो क्या करता
TMSL की जगह GDSC पास करता। में आया या मैं इसको भी कोड करके दिखाऊं? एक बार चैट में लिखो। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट वाला फंडा समझ में आया? अच्छा, रिपीट। ओके, यस यस। कोड, ओके। I think I do have to show them in the code. Shahrukh, just stop the slide for it. देखो, बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। तुम ऐप तो कुछ भी बना सकते हो, पर अगर तुम्हारा बेसिक ही गड़बड़ है ना, तुम कुछ भी ऐप नहीं बना सकते। इसलिए बेसिक में हम लोग थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहे हैं, ताकि तुम्हारा अगर बेसिक फंडा सही हो जाए तो तुम कुछ भी बना सकते हो। चलो, जो लोग अभी समझ नहीं पाए उनके लिए कोड में बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से समझा देता है। जल्दी, my code is visible, right? चलो, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे, चलो इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये तो एक TMSL हो गया, इसका वैल्यू डालते हैं कोलकाता। नेक्स्ट में क्या करते हैं हम लोग? नेम का कोई वैल्यू हम पास ही नहीं करते। नेम का वैल्यू पूरा हट गया, हम पास करेंगे ही नहीं। लेट्स सी क्या आउटपुट आता है। यहाँ पे पहले वाले हम नेम का वैल्यू TMSL पास कर रहे हैं, पर नेक्स्ट वाले में हम नेम का वैल्यू पास ही नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो क्या हो, जब हम पास कर रहे हैं ये TMSL, तब ये कोलकाता नहीं आ रहा, वो तब TMSL आ रहा। पर जब हम कुछ भी नहीं पास कर रहे हैं नेम का वैल्यू, तब जाके कोलकाता रन हो रहा है। मतलब ये नेम का वेरिएबल भी ऑप्शनल हो गया। मतलब नेम का वैल्यू अगर तुम कुछ नहीं डाले तो कोलकाता होगा, अगर कुछ डाल देते हो तो वही होगा। ये होता है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। ठीक, अब समझ में आया? ओके, चलो। स्क्रीन नॉट विजिबल था क्या? ठीक, स्वरूप, प्रेजेंट द स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। चलो, अब तुम्हारा लगभग जो चीज सीखना था हो गया है। अब हम आते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो पे फिर से वापस। अब मेरे साथ पूरा फॉलो करो। एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल थोड़ा सा हेक्टिक है, देखते रहो क्या होता है। स्टॉप द स्लाइड। मेरा स्क्रीन विजिबल है? जो एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड हुआ था उसको अभी हम ओपन करेंगे। Just give it a second. चलो, एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन। अच्छा, सबको सेशन कैसा लग रहा है? चैट में लिखो एक बार। एक और क्वेश्चन दे? Should I give another question? Okay. Here is my question. There are write a function which takes two parameters and gives an output. What should be the output? Okay. In that meantime, Android Studio is starting up. If you are in Windows, when the pop-up pops up for yes or no, click yes. The output will be hello compose camp,
कंपोज कैंप का वैल्यू तुम्हारा डायनामिक होगा, वो तुम्हारा एक तुम्हारा पैरामीटर होगा नेम, एक तुम्हारा पैरामीटर होगा आज का डेट, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, हेलो तुम्हारा बेसिकली आउटपुट क्या होगा, अगर हम इनपुट पास करें कंपोज कैंप और डे 1 तो तुम्हारा आउटपुट होना चाहिए हेलो कंपोज कैंप दिस इज डे 1। तो अगर हम कंपोज कैंप की जगह कुछ और भी पास करेंगे और डे 1 की जगह कुछ और पास करेंगे तो वैसा आएगा। तुमको फंक्शन में प्रिंट नहीं करना, तुमको फंक्शन से वैल्यू रिटर्न करना है, वो वैल्यू तुम्हारा मेन में जाके प्रिंट होगा। और अगर हम कुछ भी पास नहीं करते मेन का वैल्यू, तब वो जीडीएससी होगा, डिफॉल्ट वैल्यू जीडीएससी होगा। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, बोलो एक बार। मैं फिर से क्वेश्चन बता रहा हूं। एक फंक्शन लिखो जो दो पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा, एक होगा नेम, एक होगा डे। नेम पैरामीटर में हम स्ट्रिंग वाला कुछ वैल्यू पास करेंगे और डे वाला पैरामीटर हम कोई इंटीजर पास करेंगे। हम मेरे इनपुट, अगर तुम सोचो टेस्ट केस समझो, ये टेस्ट केस है कि अगर नेम का वैल्यू तुम्हारा हुआ कंपोज कैंप और डे का वैल्यू 1 हुआ तो तुम्हारा आउटपुट जो आएगा हेलो कंपोज कैंप दिस इज डे 1, ऐसे करके होगा। अगर हम नेम का वैल्यू कुछ भी नहीं पास करेंगे तो नेम का वैल्यू बाय डिफॉल्ट होगा जीडीएससी, समझ रहे हो। और ये इन आउटपुट जो आएगा वो फंक्शन से नहीं आएगा, वो फंक्शन एक स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करेगा, मेन में जाके आउटपुट आएगा, मेन में जाके हम प्रिंट करेंगे उस फंक्शन का वैल्यू। अब समझ में आया? अभी भी रिपीट द क्वेश्चन करूं? बाकी लोग बताओ समझ में आया कि नहीं। अच्छा, जिन जिन लोगों को पहले समझ में आया कोड भेजो, देखते हैं, पहले देखते हैं, चलो कोड भेजो पहले। ओके देवांजन, पहला कोड उसी का है। बढ़िया देवांजन, बढ़िया, राइट। बढ़िया यूसुफ, राइट। बाकी लोग भेजो, देखते हैं, पहले देखते हैं तुम लोग समझ पाए हो कि नहीं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 8:50 तक वेट करता हूं, देखते हैं कौन कौन करता है। आदर्श बढ़िया, सुमित ठीक है, ठीक है, चलो समझ में आया है एटलीस्ट। अब ठीक है, चलो एंड्रॉइड स्टूडियो में वापस चलते हैं। अब एंड्रॉइड स्टूडियो में तुम्हारा होगा, ये कैसा आएगा, डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस, ऐसे करके विंडोज में आएगा। वहां से तुम्हारा ये स्क्रीन आने वाला है, वेलकम टू एंड्रॉइड स्टूडियो सेटअप। अब कोड थोड़ा स्टॉप करो, मेरे साथ फॉलो करो पहले। सॉरी मेरा 2 ओपन हो गया, एक क्लोज कर देता हूँ। अब यहां से करेंगे हम लोग नेक्स्ट। पहले ठीक से देखो एंड्रॉइड स्टूडियो के सेटअप, डायरेक्टली अभी हम नेक्स्ट करते जाएंगे, जो यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है होने दो। अगर तुमको चेंज करना है, मतलब बाय डिफॉल्ट तुमको कोई मतलब मजबूरी चेंज करना ही है, तब तुम चेंज कर सकते हो, पर प्रेफरेबली ये जो है रहने दो, बस नेक्स्ट कर दो। यहाँ पे जो भी है नेक्स्ट। अब इंस्टॉल के लिए वेट करो, ये इंस्टॉल होते होते अब फिर से कोड लिखो। चलो ये कर दो, इस स्टेज में आके फिर से कोड लिखो, ये इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अंकित गांधी, अंकित तुम्हारा क्या लिखे हो तुम, रुको लेट्स सी।
एग्जैक्टली आउटपुट वो नहीं है, पर ठीक है, ठीक। ठीक है, बढ़िया, समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है। चलो, सबका ये एंड्रॉइड स्टूडियो मेरे साथ साथ चल रहा है ना? एक बार चैट में लिखो किसी के एंड्रॉइड स्टूडियो में कोई दिक्कत हो रहा है कि नहीं, देखते हैं। किसी के एंड्रॉइड स्टूडियो में कोई दिक्कत हो रहा है तो बोलो। बस नेक्स्ट नेक्स्ट ही करना था और कुछ नहीं। हाँ, इंस्टॉलिंग थोड़ा टाइम लगेगा। चलो, हो गया, मेरा थोड़ा सा स्लो है, देखते हैं क्या होता है। चलो, मेरा भी नेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट, स्टार्ट एंड्रॉइड स्टूडियो। ये लोगो बढ़िया है ना चिपमंक का? चलो, खुल गया। जो लोग इंटेलिजे या पाइचार्म यूज करते हैं तो उनको तो बढ़िया एकदम होम लगेगा कि ये तो पूरा अपने घर में आ गया। थोड़ा सा वेट करते हैं, ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अच्छा, मेरा डायरेक्टली ओपन हो गया। बहुत लोगों का सेटअप स्क्रीन आया होगा, है ना? बहुत लोगों का सेटअप स्क्रीन आया होगा, नहीं? हाँ, वहां पे तुम लोग अपना थीम सिलेक्ट कर सकते हो, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओ, उसके बाद तुम्हारा आएगा। तुम्हारा थोड़ा टाइम लगेगा। मेरा क्योंकि कुछ दिन पहले तक इंस्टॉल था तो शायद कुछ कैस्ट कोई डेटा था तो वही यूज हो गया है, तो इसीलिए मेरा डायरेक्टली आ गया। तुम लोगों का शायद उसके बाद कुछ कुछ मॉड्यूल्स भी तुम लोग को इंस्टॉल करने का आएगा, है ना? इंपोर्ट एंड्रॉइड स्टूडियो सेटिंग्स, उसको तुम्हारे पास, तुम्हारा अगर नया इंस्टॉल है तो उसको डू नॉट इंपोर्ट कर दो, डू नॉट इंपोर्ट करके कंटिन्यू कर दो। ये एंड्रॉइड स्टूडियो में थोड़ा लंबा है, देखते हैं, बहुत लोगों का थोड़ा दिक्कत आने वाला है। लेट्स सी। बाकी और किसका जो भी दिक्कत आ रहा है बोलो। और कुछ कुछ अगर मॉड्यूल्स इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा तुम्हारा प्रोसेसर स्पेसिफिक, क्योंकि इंटेल स्पेसिफिक कुछ कुछ मॉड्यूल्स होते हैं और एएमडी स्पेसिफिक कुछ कुछ मॉड्यूल्स होता है, तो वहां पे यस कर देना उसको। लाइसेंस एग्रीमेंट में यस कर दो। स्टैंडर्ड इंस्टॉल टाइप स्टैंडर्ड। और किसी को जो भी दिक्कत आ रहा है यहाँ पे लिखो, देखते हैं क्या होता है। अभी हम बेसिकली देखो, अभी बेसिक हम लोगों का हो गया है। अब
एक एप्लीकेशन बनाना, आज ही एक बेसिक एप्लीकेशन बना के उसके बाद हम रैप अप करेंगे। एसडीके कंपोनेंट सेटअप होगा, एसडीके के बिना नहीं चलेगा। तो एडिशनल मॉड्यूल्स जो भी इंस्टॉल हो रहा है उसको होने दो। हाँ अगेन डाउनलोड होगा, नॉर्मल है। जेटपैक इसके अंदर बिल्ट इन आता है, तो इसके लिए अलग से कोई इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं। लाइसेंस वाले में ऑप्शन नहीं आ रहा, और लाइसेंस वाले में तुम्हारा देखो नीचे आएगा, थोड़ा स्क्रॉल कर दो पूरा नीचे, शायद वहां पे आएगा आइए के कुछ आएगा। नेक्स्ट नहीं हो रहा है, क्या हो गया? इप्शित नील, शायद तुम्हारा नाम सही प्रोनाउंस कर रहा है। इंस्टॉल हो रहा है, फिर से होगा। लाइसेंस एग्रीमेंट, okay Ipshit Nil, if you are in the WhatsApp group, can you please send a screenshot? अच्छा न्यू प्रोजेक्ट का स्क्रीन आया है ना, वहां पे रुक जाओ। जिस चीज का न्यू प्रोजेक्ट का स्क्रीन आ रहा है वहां पे सीधा रुक जाओ। न्यू प्रोजेक्ट का स्क्रीन आने का मतलब तुम्हारा सब कुछ सही चल रहा है। हाँ डाउनलोड होगा। चलो देखो बेसिकली हमारा ये अगर स्क्रीन आ जाता है न्यू प्रोजेक्ट टू, तो ये स्क्रीन अगर तुम्हारा आ गया तो तुम समझो तुम्हारा सब कुछ ठीक है। ये स्क्रीन किस किस का आया है? ये स्क्रीन अभी तक किस किस का आया है न्यू प्रोजेक्ट करके? चलो न्यू प्रोजेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्योंकि कंपोज का कर रहे हैं, ये कंपोज का लोगो है, ठीक है, ये हेक्सागोनल चीज है, ये है कंपोज का लोगो। तो एम्प्टी कंपोज एक्टिविटी, इसको क्लिक करो। ओके इप्शित नील, जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी सी। हाँ एक्सेप्ट करके तुम फिनिश करो इप्शित नील, तुम एक्सेप्ट करो उसका उसके बाद तुम डायरेक्टली फिनिश पे क्लिक करो, देखो तुम्हारा डाउनलोडिंग स्टार्ट होगा। चलो यहाँ पे हम एक कोई फंक्शन है बर्थडे ऐप, ठीक, ये कोई पैकेज का नाम अपने हिसाब से पहले तो जो है वही रहने दो, बाद में ये दिखाते हैं क्या होता है। और अपना जहाँ पे सेव होगा ये तुम लोग देख लो, मेरा जैसे ई ड्राइव पे, ई ड्राइव के अंदर एक एंड्रॉइड डेवलपमेंट करके एक फोल्डर है, वहां से हम बर्थडे ऐप सेव कर रहे हैं। उसको अगर हम चेंज करना चाहें तो यहाँ पे जा सकते हैं, फिर से न्यू फोल्डर, ट्राई करो एक एम्प्टी फोल्डर के अंदर हो। सॉरी सिलेक्ट नहीं हुआ ये। यहाँ पे तुम लोग देख लो कि सब कुछ सही है कि नहीं। यस, और लास्ट में जो है ये प्रोजेक्ट का नाम रहना चाहिए, ये थोड़ा देख लेना।
लास्ट में ये प्रोजेक्ट का नाम रहेगा लैंग्वेज कॉटलिन एपीआई 21 रहना दो। 21 मतलब तुम्हारा एंड्रॉइड 5.0 ये चल जाएगा। It is showing SDK missing. Okay. Send the screenshot. I will. अच्छा मेरा स्क्रीन अभी तक विजिबल था ना? ऐसा तो नहीं कि मेरा स्क्रीन फ्रीज हो गया है। न्यू प्रोजेक्ट पेज से तुमको करना है एम्प्टी कंपोज एक्टिविटी। उसके बाद अपना प्रोजेक्ट नाम डालो और नेक्स्ट कर दो। यहाँ पे थोड़ा टाइम हमारे हार्डवेयर पे कंपाइल होने में ग्रेडल बिल्ड प्रोजेक्ट बिल्ड होने में तब तक हम ये कर सकते हैं इम्यूलेटर बना सकते हैं। ये मेरे पास है तो इसको पहले से डिलीट करते हैं। रुको। इम्यूलेटर बेसिकली तुम्हारे कंप्यूटर एक फोन है, तुम फोन में जो कर सकते हो इम्यूलेटर में वही कर सकते हो। मतलब कि वर्चुअल फोन हो गया। ठीक। तो यहाँ पे अगर हम इसको ये जिसका ये पेज खुल गया है वो लोग यहाँ पे डिवाइस मैनेजर पे क्लिक करो। हम नॉर्मल फिजिकल जो फोन कैसे लगाते हैं वो हम बाद में आएंगे। अगर मेरे ऐप में एरर है तो हम वो नहीं चाहते मेरे फिजिकल फोन में टेस्ट हो। मेरा जो भी दिक्कत हो वर्चुअल में जो भी हो जाए, ऐप जब मेरा रेडी होगा तभी हम जाके फिजिकल डिवाइस में टेस्ट करेंगे। तो वर्चुअल डिवाइस बनाने के लिए क्रिएट डिवाइस उसका जहां से तुमको पसंद हो वो उठा लो यहाँ से। अभी टीवी भी मत करो, ठीक है, बस फोन रखो। चलो यहाँ पे मेरे को देखते हैं पिक्सल 5 पसंद है। मेरे को पिक्सल 5 का डिजाइन मेरे को पसंद है। तो यहाँ पे नेक्स्ट दिखेगा बहुत सारे एंड्रॉइड वर्जन दिखेगा तुमको, जो वर्जन अभी के लिए। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे 5 जो है ये पोर्ट्रेट मोड में रहने दो अभी के लिए। उसके बाद सीधा फिनिश। ये वर्चुअल फोन, इसको रन करो एक बार, देखते हैं कैसा चलता है। चलेगा, ठीक है। ग्रेडल भी थोड़ा सा टाइम लगता है, अगर किसी का फास्ट चलता है विंडोज में थोड़ा टाइम लगता है। चलो ये प्रोसेसिंग हो रहा है, हो गया। ओके गाइस, बाकी टीम मेंबर्स देखो किसी और का कोई दिक्कत आ रहा है तो यहाँ पे लिख दो। हाँ, बिकॉज आई कैन चीज का ये आ गया है
आप देखो एंड्रॉइड स्टूडियो में कैसे करना है, ये है हमारा मेन, ठीक, ये है एंड्रॉइड बार या एंड्रॉइड व्यू या सारे व्यूज है, एंड्रॉइड व्यू, प्रोजेक्ट व्यू, उनको तुम बेसिकली मोस्टली तो प्रोजेक्ट व्यू या तो एंड्रॉइड व्यू यूज तुम यूज कर लोगे, तो एंड्रॉइड व्यू पे लगता है। अब ये एनालाइज होने ऐप, ये जो तुम ऐप खोलो ये ऐप, उसका तुम क्रिएट किया, तुम जो भी फोन क्रिएट करो मेरे, तो वो आ गया, तो यहाँ पे कोई प्रोसेसिंग कुछ नहीं होगा, क्लिक करोगे तो ये टिल्डन स्प्लिट क्या है तुम्हारा यूआई दिखेगा, इस यूआई पे तो कभी क्लिक नहीं कर सकते, दिखेगा प्रीव्यू यहाँ पे दिखता है, यहाँ पे अगर कोई बटन होगा तो तुम उसको क्लिक नहीं कर सकते, ये बस तुम्हारा दोनों एक साथ दिखेगा, कोड मतलब सिर्फ कोड और डिजाइन मतलब बस तुम्हारा प्रीव्यू, कोड हाइड हो जाएगा। मैं ये प्रेफर करता हूँ दोनों मतलब एक के बाद और, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रखा। ये थोड़ा होने में टाइम लगेगा, पहले तो बोल रहा है नीचे चल रहा है, तब तक हम यहाँ पे एक बताते हैं, यहाँ पे भी तुम्हारा दिखेगा बेसिकली मेन फंक्शन का तुम्हारा कंपोज। अब देखो यहाँ पे जो एंड्रॉइड एक्स लिखा हुआ है, ये कंपोज मतलब ये तुम्हारा कंपोज लाइब्रेरी से आता है, कंपोज लाइब्रेरी, इसको हम फिर हाइड कर देते हैं, ये इंपोर्ट ऑटो इंपोर्ट होता है, तो ये करने की जरूरत नहीं, ये तरह काम करता है यहाँ पे। और उसके बाद ऑन क्रिएट एक फंक्शन है जो बेसिकली तुम्हारा ऐप को स्टार्ट करता है, ये ऐप जब स्टार्ट होगा बेसिकली यही बोलता है कि जब मेरा ऐप क्रिएशन होना स्टार्ट होगा, ये फंक्शन एक एक करके एग्जीक्यूट करना स्टार्ट होगा। अब सुपर जो है ये थोड़ा एडवांस, उप्स का कॉन्सेप्ट जानते हैं उनको पता है कि ये बेसिकली पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, और ये सेट कंटेंट एक लैम्डा फंक्शन है, लैम्डा फंक्शन हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे, लैम्डा फंक्शन ऑन डेप्थ आएंगे, ये सब एनोनिमस, इस फंक्शन का कोई नाम नहीं है पर ये फंक्शन है, यहाँ इसको पूरा रन पहले, तब तक ये फोन में भी चला सकते हो, जो पिक्सल 5 जो मेरा लिखा है ना, ये जो ग्रीन प्ले वाला बटन है वो भी दबा सकते हो, एक साथ ऑन हो जाएगा। लैपटॉप में सिस्टम थोड़ा ज्यादा चल रहा है तो इसीलिए थोड़ा सा स्लो है, नहीं तो हो जाएगा। देखता रहो, लेट्स सी, तब तक क्या क्या हो, ये जो प्रीव्यू जो यहाँ पे एट द रेट देख एनोटेशन, ये कंपोजेबल भी एनोटेशन है, एक प्रीव्यू भी एनोटेशन है, ये किसी फंक्शन के वो लिखने का मतलब है, इसका वैल्यू ये जो यहाँ पे है स्प्लिट में दिखेगा, स्प्लिट या डिजाइन में तुमको यहाँ पे प्रीव्यू दिखेगा। कंपोजेबल मतलब तुम्हारा जो फंक्शन जेटपैक कंपोज कंपोजेबल, वो भी
से होता है, ये कुछ एलिमेंट लिख, वो यूआई एलिमेंट यहाँ से होता है। अच्छा, कंपोजेबल का बोले, और कंपोजेबल तुम कंपोज फंक्शन से बना होता है। जेटपैक हर एक कंपोनेंट एक फंक्शन होता है। फंक्शन के अंदर तुम एक यूआई को डिफाइन, और हर एक जेटपैक कंपोज का फंक्शन नेम एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट, अंदर तुम कुछ भी डाल, जैसे हो गया ग्रीटिंग मेन एक्टिविटी जो मेन फंक्शन है वहीं से कॉल कर। ये मॉडिफायर जो है प्रीव्यू ऑन हो जाए, हम आते हैं मॉडिफायर, तो तुमको समझ में आ रहा होगा। एक बार प्रीव्यू ऑन हो जाए दिखा देता हूं। यहां तक सबका आया है ना? पहले ये बताओ, यहाँ तक सबका आया है ना, मैं जहां पे हूं? अच्छा, प्लीज रिपीट द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग डिवाइस। ठीक है, डिवाइस बनाने के लिए यहाँ पे जाओ, डिवाइस मैनेजर, डिवाइस मैनेजर पे वहां पे दिखेगा क्रिएट, फोन सिलेक्ट करो, फोन से कोई भी फोन, इससे बहुत सारा फोन का लिस्ट है, कोई भी फोन सिलेक्ट करो, पिक्सेल एक्सेल इस केस में। नेक्स्ट, ये जो एंड्रॉइड वर्जन दे रहा है ये सही वर्जन दे रहा होगा, वहां से नेक्स्ट क्लिक करोगे और यहाँ से फिनिश क्लिक कर दो, हो जाएगा। Thing is wrong. Let me just try to start it off. ये थोड़ा सिस्टम लोड की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं एंड्रॉइड स्टूडियो बहुत ही हेवी, तो ये थोड़ा सा स्लो हो जाता है। यहाँ तक जिसका बना है, किसी का प्रीव्यू रन हुआ है? तुम जहाँ पे वो स्प्लिट में क्लिक किए हो, किसी किसी का आया है क्या? बताओ मेरे को, चैट में आ जाना चाहिए। बढ़िया। और फोन में ग्रीन प्ले वाले बटन पे क्लिक करोगे तो वो फोन में चला है? बढ़िया बढ़िया। मेंबर्स में से किसी के एंड्रॉइड स्टूडियो तो थोड़ा सा शेयर करो, आई थिंक मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है कि मेरा पे रिकॉर्ड, आई गेस स्वरूप का हुआ है या किसी बात, थोड़ा सा शेयर कर पर। हमारे टीम मेंबर्स में से किसी का एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल हुआ है क्या? और लेट मी जस्ट,
जस्ट गिव इट अ मिनट। सबका हैप्पी बर्थडे वाला दिखाया है? जिसका दिखा है एक बार व्हाट्सएप में प्रीव्यू दिखाओ एक बार कि सबका चल रहा है कि नहीं, देखता है। जिसका सिस्टम रिक्वायरमेंट नॉट सेटिस्फाइड आया है, उसका मतलब उसका हार्डवेयर रिक्वायरमेंट ये था कि तुम्हारा 8 GB से ज्यादा रैम होना चाहिए, तो इसीलिए आ रहा है वो। एंड्रॉइड स्टूडियो का सिस्टम रिक्वायरमेंट वही है। एंड्रॉइड स्टूडियो अपने फोन से भी यूज कर सकते हैं, पर प्रेफर करो अपने फोन से यूज ना करने का, क्योंकि तुम्हारे फोन में समझो कोई इनफाइनाइट लूप या कोई मेमोरी एरर आ गया तो तुम्हारा फोन में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसीलिए जितना भी टेस्टिंग हो सकता है वर्चुअल में करो, अपने फिजिकल फोन में तभी करो जब तुमको लगे कि हाँ मेरा ऐप सब कुछ। बढ़िया। जिसका हेलो एंड्रॉइड आया है उनका दिखाओ। सबका ये हेलो एंड्रॉइड वाला सीन आया है ना? अब एक बार चैट में यहाँ पे लिखो जिसका हेलो एंड्रॉइड या कुछ आया है, या जिसका ग्रेडल बिल्ड चल रहा है। प्रीव्यू में सबका क्या आया है? हेलो एंड्रॉइड आएगा एक। बढ़िया। हेलो एंड्रॉइड बन, इसका मतलब तुम्हारा पहला ऐप, मतलब पूरा सब कुछ जो बेसिकली गूगल जो बॉयलर प्लेट वो सब कुछ चल रहा है तुम्हारे कंप्यूटर में, अभी कोई दिक्कत नहीं। ये ठीक। अब इसी के ऊपर बिल्ड करेंगे, इसी के ऊपर हम अगले दिन ये एक हैप्पी बर्थडे वाला ऐप बनाएंगे। ठीक। अब यहाँ तक किस किस को या कुछ भी समझ में नहीं आया, हम Q&A ओपन, हमको बताओ अभी। अच्छा Q&A ओपन है, बताओ इसका जो भी क्वेश्चन है ये बताओ, उसके बाद हम रैप अप करेंगे। जिसका जो भी क्वेश्चन है Q&A में लिखो। एक देखो Q&A सेक्शन है, वहां पे लिखो। What will be the function of this app? This is a very boilerplate app right now. हम लोग अगले दिन यहीं से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद इमेज कैसे ऐड करना है, टेक्स्ट कैसे ऐड करना है, डायनामिकली इसको कैसे करना है, वो हम करेंगे एक एक करके। और ये जो भी मैंने पढ़ा है इसका एक लिंक जाएगा तुम लोगों के पास, वहां से अगले क्लास तक तुम लोग ट्राई करो, ये जो भी पढ़ा है वो लिंक में होगा, जो भी मैंने बोला इससे भी डिटेल्स में होगा, तो वो ट्राई करो, वो सारे चीज कंप्लीट कर लेने का, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा। I'm sorry to interrupt, Shomalo. If anyone is having any issues and if you want to share your screen so that we can clear your doubts, you can raise your hand or you can write it in the chat section. I'll make you the host and you can share your screen there. And don't worry about anything else. We'll be sending you all the materials, the courses that I promised that Google will share about all these resources and all. That will be also be shared in a GitHub link format. GitHub will have the access to all those links. So everything will be sent in a mail. The recording of this session will also be sent. So don't worry about that. And if anyone has run it successfully and want to share it to your peers, you can also tell me. I can give you the host access. Ravendra, you want to show a problem or you want to show that you have successfully completed the task? Okay, Ravendra, I'm giving you the host access. You can speak then. Ravendra, you can speak now.
Shomal, please repeat how to rerun the code. Anushka couldn't follow up. Okay. Yeah, that was it. I was trying to reply to her. Okay, Ravindra, you want Anushka, to say see, something? you have a like a green colored triangular colored kind of button in the right side top section. There will be something written app, then the virtual device name, then there is a green colored triangle. Can you find it, Anushka? It is near the right side of the top section. अच्छा जिसका Anushka, you पिक्सल can 5 share your screen after Ravindra. ओके अच्छा निकेत We'll go one by one. तुम्हारा पिक्सल 5 आया है और हेलो नहीं आया है, इसका मतलब तुम वो ग्रीन कलर के बटन में क्लिक नहीं किए हो। राइट साइड के टॉप के साइड पे देखो एक ग्रीन कलर का ट्रायंगल है, वो क्लिक करोगे वो वर्चुअल डिवाइस में तुम्हारा ऐप चलने लगेगा। थोड़ा सा टाइम लेगा उसके लिए। Now show your problem. स्क्रीन आ रहा है? हेलो हाँ हाँ, screen है। right. यहाँ पे जैसे कि यहाँ पहले मतलब मेरे पीसी में पहले से इंस्टॉल किया हुआ था एंड्रॉयड स्टूडियो। हाँ बढ़िया दिख रहा है। यहाँ यूज़ भी करते थे जावा से, तो फिर यहाँ पे दोबारा जावा दिखा रहा है। यहाँ कॉटलिन दिखाएगा क्या? वो जावा आएगा वो एंड्रॉइड जावा ही आएगा। हाँ मेरा भी आता है वो। ये ट्राई करना अपग्रेड करने का, क्योंकि तुम्हारा अपग्रेड करने का शायद ऑप्शन आया है, और कॉटलिन का तुम्हारा शायद वो अपडेटेड वर्जन, और जेटपैक कंपोज का तुम्हारा 1.2.0 आप ट्राई करना। तुम जब अपग्रेड करोगे दिखाएगा कि कॉटलिन अपग्रेड कर रहे हैं और जेटपैक कंपोज का लाइब्रेरीज का अपडेट कर रहे हैं। और जो लोग नया इंस्टॉल किए हैं उनका अपडेट नहीं है, उनका ऑलरेडी अपडेट आया है। ओके ठीक है, बस ये था। थैंक यू। Anushka, now you can share your screen. Anushka, you there? I think Anushka is not there. Okay, Anushka is still there. Sorry. Anushka, have you seen the sharing screen enabled? There will be a TV sign of a TV. Is your problem solved, or did you get the share screen button? Anyone else who wants to show that Yeah. you have run it successfully? Okay, Anushka said it is solved. Great. All right, great, Anushka. Anyone else who wants to show? Many are facing a lot of problems, and they are telling it in the WhatsApp group. If Okay, I will you want to seize this opportunity, you can share it right here. अच्छा अंकुश दास, जब कोड रन होगा सिर्फ हेलो एंड्रॉइड आएगा। हाँ, बॉयलर प्लेट कोड में तो वही आता है। अगले दिन इसको चेंज करके और अच्छा खासा ऐप बनाएंगे, इसी के ऊपर बिल्ड करेंगे। इट्स नॉट वर्किंग आफ्टर दिस।
अच्छा, क्रिएट अ डिवाइस पे क्लिक करो दीपांजलि. I am solving the problems in the WhatsApp group. All right. Others, meantime, who are here, if you have problem, please ask Shantini. She will give the permission. Shumalu, you are muted. Sorry, guys. I think no one is having problem right here. We can wrap up. Kushal, I think we are good to go. Kushal, are you here? Yes, Shumallo. Okay, so guys, I would like to congratulate all of you on successfully completing the first unit of the month-long, session on building your first Android application. So here I would like to discuss upon the. Okay, first let me tell you that you will be having your upcoming sessions, which will be on a hybrid mode, and you definitely need to join all of these sessions to completely understand what is going on, so that if you miss a session, what will happen is that there will be a gap between what has been taught and what you have understood. एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आता है डेफिनेटली यू हैव द व्हाट्सएप ग्रुप्स, वहां पे टेक्स्ट कर सकते हो, सेशंस में आ सकते हो, बट मेक श्योर whatever has been taught in one session उसको तुम जाके खुद से प्रैक्टिस करते हो, so that the next time you come and join the next session where your facilitator will be taking you forward from where he has taught you the last day, तो वहां पे आके तुमको कोई प्रॉब्लम ना हो, और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो डेफिनेटली हम लोग सब है, यू कैन आस्क फॉर हेल्प एनी टाइम. Now, I would like to talk about what you will gain at the end of this, keeping aside the benefits, the learning curve that you're going to get. You can put this on your CV. This can be a start of your new career option for you, where you can start going ahead with this Android learning sessions and build apps and just get over the world, conquer over the world. Apart from that, when you complete each unit and your pathways in the pathway, what you get is a digital badge. What I was talking about in the opening of this session is that you will get a digital reward. So what is it? You will get a badge. So you can redeem the badge at the end of each session, and these badges will act as a proof memoir or a souvenir, what you call, or also more than that, it will act as a symbol that you have actually genuinely completed this course, this tracks. And so when you keep collecting all of these, this will add together. You can put the link of these batches on your CV, and this will, trust me, from your seniors, also being somebody who has done and gone through all of these badges are really helpful. You can put them forward in your CV when you pitch to an interviewer everywhere. So that's all from my side. So we have come to the end of this session, and Omiru, would you like to take on from here? Yes, thank you, Kushal. So this is not really the end. We have some more exciting news to share with every one of you. तो बेसिकली अगर आप लोग अभी तक यहाँ पे हो, दैट मीन्स आई होप ऑल ऑफ यू लाइक द सेशन. प्लीज लेट मी नो इफ यू डिड, एंड इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इट दैट यू रियली लाइक, वी विल ट्राई टू एम्फसाइज ऑन दैट लिटिल मोर. अभी तक इसके पहले भी मैंने जो बोला था, आई होप इट जस्ट टुक ऑन अ फ्यू मोर टर्न्स.
तो वो जो ऑफर था कि come up with an idea, pitch it to me, and we will try to ensure that that really comes to life. वो is अभी भी on the table. Okay, so anytime throughout this entire week, throughout this entire month, really, if you ever come up with a great idea and you really want to put it out, you want a nice app that will actually make money, that will be out there, do pitch it to me. I am there in all the WhatsApp groups and the Discord channels everywhere. You can find me. You have my name on the screen. So do come to me and pitch your idea, and we'll see if that works. And if you are one of those people who have the potential to actually go forward with it, we will definitely do that. Now, moving on, we have, like, I hope many of you were able to do your programs and run it, right? Just give me a count on this in the chat if you were able to run your programs and everything, and this was your first time actually running a Kotlin. Just let me know how many of you did it for the first time and actually could do it. Okay, so what I am trying to do is we will be having sort of, I hope everybody's on social media, right? So we will be trying to have a social media aspect to this. What I'll do is I am sharing a set of links and a set of tags. What you are supposed to do is take a screenshot or take a picture or whatever you want of this particular session, as in like the program that you ran and how that actually gave you a output for it, and post it on your social media handles tagging us. And if you are one of those lucky people who actually did it really nice and went on through the entire month with your post, we will be there and featuring you as well as a part of the social initiative. So I am putting out all the links. We are present on Twitter, LinkedIn, Facebook, everywhere. And I've also added some tags. You can see Google Devs, Google Students, and Student Developer Clubs. So you can ping all of them. You can tag all of them in your post. You can use this hashtag that I've put over here. And please do ensure that you tag us, the GDSC TMSL. You have the links right over here. You do tag us in all your posts. You can post a picture where you went into a trouble and that was solved. You can post a picture of how you actually developed an app, since your first app on Kotlin this is. So you can put out that as well. And if you also have a funny meme to share on Twitter, do go ahead. I give you that liberty. I know the Twitter community over here is really engaging, I hope. So let's see if we can get some nice Kotlin memes. We are open to that as well. So yeah, I see a lot of people who are doing it for the first time, and I know the excitement of running your first Hello World program, if that's it. But yeah, we would like to see you engage with us on social media through these channels. Apart from that, please do keep on working on those amazing ideas. I saw some very good ideas today. So we need to work on those and do pitch out to me. Another thing, what I am thinking of, and you guys let me know if that's a good idea if you want to do that, is after you have done this one initial, event of a normal Hello World program, we are going to go ahead and step it up a little bit and give you another program. So I'll hand over to Shayantini for the time being. And Shayantini, would you like to take over now? Yeah, I'm going to just show you. Many had the question like, what are the batches they are going to earn, how they are going to earn. So I'm just sharing you a brief idea. So this is the GitHub account I was talking, GitHub profile I was talking about. Here, go through the README file thoroughly. I'll be sending you all these links. Here you have the materials for introduction to Kotlin. I'm showing you what this is. Here, these are the pathways that are made by Google. Introduction to Kotlin, set up Android Studio, build a basic layout. This is what we went through in today's workshop. After completing each of these pathways, you're going to earn these digital badges that will be added to your Google developer profile. Because this is a platform where you learn about Android Studio and you have a profile there. And when you can share this profile in your resume or anywhere you can want to showcase your talent. You can also, after earning these batches, you can also post it in LinkedIn and other social media platforms. And link to all these things are present in this GitHub account. Here are the links. And every week we are going to update this GitHub README file as well as this GitHub repos
these folders you're also going to update about the weekly materials. Whatever you've learned today, if you have any queries like you couldn't follow up, you had interconnectivity issues, we are going to send all these recordings and links. Everything will be updated in this GitHub account. Also, I'll be sending a mail having all these resources after every session, so you won't be having any problem. And I hope after seeing these two, it clarified all your queries. Can I have a yes or no in the chat section, please?